Hello everyone. Good morning to all of you. Am I audible to you guys? Yes, sir. Yes, sir. And is screen visible? Yes, sir. Yes. Okay. So in the last class we discussed how to find out the complement of a given function. We discussed it how using the De Morgan's theorem multiple times, as many times as necessary, we can find out the complement of the given function. Now let's move on to the next topic, which is canonical and standard form for representing the Boolean function. So first we will discuss the canonical forms and then we will discuss the standard form. Okay, so any binary variable that can appear in the normal form, that is, let's say x, and it's n in complement form, known as x dash या फिर x bar भी हम उसको कह सकते हैं. ठीक है. So let's say you have two variables x and y. So with the combination of two variables, you can have four different terms. Like you can have x into y, x dash y, x, then you can have x y dash, and then x dash y dash. Okay, so each of these four AND terms are called as min term. Okay, so this is basically the product of the input variables. जो भी आपके variables हैं उनके product हैं. अगर दो variable हैं तो उनके combination है. उनके product में वो normal form में भी हो सकते हैं और complemented form में भी हो सकते हैं. That's why the min terms are also called as standard product. ठीक है. Similar to the AND operation between different terms, we can also have OR operations. We can also have OR terms. So for x and y, we can have x plus y, or x plus y dash, या फिर x dash plus y, या फिर x dash plus y dash. So there are four different combinations there also, with or between the all the variables. So those are known as max terms or standard terms. One is standard product, where we have the AND operation between different terms, and another is max terms, where we have OR operation between different variables. So you can see here, if x, y, z for this particular combination, x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, the mean terms will be designated as x dash, y dash, z dash. And it will also be denoted as small m with an index 0. Okay. Similarly, let's say we have this particular input combination 1, 0, 1. So to represent it in mean terms, we will write x for 1 because it is in the normal form and not in the complemented form, y dash for this, and z for this, and operation between these three variables. So x, y dash, z will be the mean term, and we can denote it also as m5, where small m denotes that it is a mean term, and 5 comes from the decimal equivalent of the binary combination. Okay, so in the last one, the decimal equivalent is 7. So we have 7 here. So if you are given a particular input combination, you can simply write the min term by writing the variable name in normal form or in the complemented form. ठीक है, इसी तरीके से मैक्स टर्म में होगा. ठीक है, 0 0 0 अगर आपका कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए जो मैक्स टर्म बनती है वो बनती है x प्लस वाई प्लस जेड. इसमें और ऑपरेशन होगा और इसमें रिवर्स आपका काम करेगा. अगर 0 है तो नॉर्मल फॉर्म में यूज करना है, और अगर 1 है तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में यूज करना है. जैसे कि अगर हम इस कॉम्बिनेशन की बात करें 0 1 0, तो इसके लिए हमारा मैक्स टर्म बनेगा x प्लस वाई डैश
प्लस z। तो यहाँ पे ये वो लिखा हुआ है x प्लस वाई डैश प्लस z। ठीक है, इसको डेजिग्नेट हम कैसे करेंगे? कैपिटल M से। कैपिटल M का मतलब है कि ये मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, and the index of the designation will represent the decimal equivalent of the input combination. So this is M2. Okay, if you try to correlate the mean term and max term, let's say आप M1 को देख रहे हो, M1 और कैपिटल M1, that is mean term M1 and max term M1 में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे आपका था x डैश y डैश z, यहाँ पे है x प्लस y प्लस z डैश। तो जो हमारे वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में थे उनको नॉर्मल कर दिया, जो नॉर्मल था उनको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कर दिया, और एंड को हमने और ऑपरेशन से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सो दीज आर टू टर्म्स जिनको हम यूज करके कैनोनिकल फॉर्म को बना सकते हैं। ठीक है, मीन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। वन अदर थिंग इज कि किसी भी मीन टर्म में आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर आपकी वेरिएबल्स हैं आपके एक्स वाई जेड, तो आप एक्स इंटू वाई डैश को एक मीन टर्म नहीं बोल सकते, बिकॉज वन ऑफ द literal is missing, one of the variable is missing in this. Similarly, you cannot say that yz is a mean term. There is one term missing, there is one literal missing here. तो जितने भी आपके इनपुट वेरिएबल्स हैं, जितने भी आपको लिटरल्स हैं, इनको हम लिटरल्स बोलते हैं। दिस इज ए टर्म x डैश y डैश z डैश एंड x डैश इज ए लिटरल। तो इसमें सबकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे मीन टर्म और तभी हम उसको बोलेंगे मैक्स टर्म। ठीक इसी तरह हम x प्लस y को मैक्स टर्म नहीं कह सकते इफ द इनपुट वेरिएबल्स आर x, y एंड z। अगर दो वेरिएबल हैं x और y तब तो ये मीन टर्म मैक्स टर्म रहेगी, बट अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो वो नहीं करेगा, बिकॉज z इज मिसिंग फ्रॉम हियर। Okay, so have you guys understood the concept of mean terms and max terms? Yes or no में reply कीजिए। Yes, sir. Okay, so Yes, sir. we know that if the number of variables is 3, then there can be total 8 combinations, और वो 8 हमारा कैसे बना? 2 raised to the power 3 से। ठीक है, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं तो हम उसे टोटल 8 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। नाउ वी नो दैट every mean term or max term can also have one value, either 0 or 1। ठीक है, इसका जो इक्विवेलेंट है वो या तो 0 होगा या 1 होगा। सिमिलरली इसका इक्विवेलेंट 0 होगा या 1 होगा। सो बाय यूजिंग these number of mean terms, the Boolean functions that you can write is again 2 raised to the power 8। okay, so if there are n variables, उससे हमारी 2 raised to the power n मीन टर्म्स बन सकती हैं, और इन मीन टर्म्स को यूज करके हम अगर फंक्शन बनाना चाहेंगे तो वो हमारे 2 raised to the power 2n बनेगी। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं एक बार। ठीक है, now a Boolean function can be expressed algebraically from a given truth table by forming a mean term for each combination of the variables that produces a 1 in the function, and then taking the OR of those terms. So basically, if this is the input variables and this is the output of the function f1, okay, so we will look for the terms where output f1 is giving 1। जहाँ पे आपको आउटपुट 1 मिल रही है, आप उन टर्म्स को देखिए, रिलेटेड टू दोज टर्म्स आप उनकी मीन टर्म्स बनाइए और बीच में और ऑपरेशन लगा दीजिए। दैट विल बी दी बुलियन एक्सप्रेशन और बुलियन फंक्शन f1 रिप्रेजेंटेड इन एल्जेब्रिक फॉर्म।
ठीक है, तो जैसे अब हमारे ये वाला केस है, इसमें हम हमारे तीन जगह पर 1 है। ठीक है, तो इसको हम इसमें हमारी 3 मीन टर्म्स होंगी, एक ये वाली, दिस सर वन, F1 और F2 गिवन होंगे ना? हाँ वो F1 F2 गिवन है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपकी जो मीन टर्म है वो क्या बन जाएगी, x डैश y डैश z डैश। Z सर वो X डैश Y डैश Z नहीं हो? z ठीक है, और इसी तरह से इससे रिलेटेड क्या बन जाएगा, x Y y dash Z डैश z डैश, देन X Y Z. x y z. Now put plus operation, or you can put the or operator between these terms and you will get the boolean function f1. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ then f1 will be equal to x dash y dash z plus x y dash z dash plus x y z. ठीक है, similarly we can write the mean term for f2. तो f2 में हमारा 1 एक यहाँ पर है और 3 और जगह पे है। तो f2 के लिए जो फर्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी बताइए, X dash Y Z. x dash y z. सेकंड X Y dash Z. x y dash z. थर्ड X Y Z Z dash z dash, and the last one X Y Z. y z. So if you are given the truth table of the function, then you can simply express them in the mean terms. इनको हम बोलते हैं sum of mean terms. ठीक है, there are 3 terms in this and there are 4 terms in this. The another way to express is, what we can do is we can write it like this: summation of mean terms. और mean terms हमारी कौन कौन सी हैं, this one corresponds to m1, second one corresponds to m4, and last corresponds to m7. हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको वन 4 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी डायरेक्टली यहाँ से भी आ सकते हो कि 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 0 1 होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने लिख दिया x डैश y डैश z। 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 0 0, तो x y डैश z। ठीक है, नाउ सिमिलरली वी कैन एक्सप्रेस द फंक्शन f1 एंड f2 एज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स. दिस वाज सम ऑफ मीन टर्म्स. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में कैसे लिखेंगे, जहां पे 0 है अब हमें वो देखना है. ठीक है, लेट्स से हम f2 के लिए कर रहे हैं, तो f2 के लिए 0 आपका यहाँ पे है, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड. x प्लस वाई प्लस जेड. फिर इसको रिप्रेजेंट करेंगे x प्लस वाई प्लस
z dash. Then this one x plus y dash plus z dash. Then this one, इसको हम लिखेंगे सर z x. z ही आएगा x plus y हाँ dash वहाँ plus पे, z. हाँ 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 वहाँ पे z आएगा. This one will be x dash plus y plus z. ठीक है. Now a product of all these terms will give you f2 in terms as a product of max term representation. ठीक है. इसको हम लिखते हैं जो दूसरी फॉर्म में जो लिख सकते हैं उसको हम लिखते हैं that f2 is equal to product of max terms. और अंदर हम लिख देंगे उनकी वैल्यूज 0 1 2 and 5, sorry 4. ठीक है. तो इसको लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म और इनको लिखते हैं सम ऑफ मीन टर्म्स. तो अगर आपको ट्रुथ टेबल दी हुई है किसी भी फंक्शन की, इनपुट के साथ सारी आउटपुट्स दी हुई हैं, देन यू कैन एक्सप्रेस देम एज इन एल्जेब्रिक फॉर्म एज सम ऑफ मीन टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स. ठीक है. ठीक है. ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया. The mean terms whose sum defines the Boolean function are those which give the ones of the function in a truth table. ठीक है. And the function can either be 1 or 0 for each mean term, and there are 2 raised to the power n mean terms. So the total number of functions that can be formed are 2 raised to the power n. Okay, now how to represent a Boolean function as as sum of min terms or product of max terms if instead of truth table we are given the simplified expression of the function. आपको ट्रूथ टेबल नहीं दी हुई है तो आपको फंक्शन दिया हुआ है. So one method is with the help of this function you draw the truth table, and then from truth table you can write the function as sum of mean terms. बट अगर आपको एल्जेब्रिकली करना है तो हम उसको कैसे करेंगे? उसको हम कैसे करेंगे? जैसे अभी हमारे पास इस फंक्शन में दो टर्म्स हैं, वन इज दिस एंड वन इज दिस. In the second term, the literal a is absent. In the first term, two literals are absent, b and c. So what we can do is just first take the first literal, first term a, and what we can do is multiply it with sum of the missing literal and its complement. अगर इसमें से b मिसिंग है तो हमने b प्लस b डैश से इसको मल्टीप्लाई कर दिया. Why? Because b plus b dash is equal to 1. तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो उसमें कोई आपका जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा. दिस विल अगेन गिव द डिजायर्ड रिजल्ट. यू आर नॉट चेंजिंग द एनी लॉजिक ऑफ द बुलियन फंक्शन. ठीक है. एंड देन वी विल एक्सपेंड दिस. उसके बाद हमने उसको एक्सपेंड कर दिया ए बी प्लस ए बी डैश. नाउ अब हमने a को लिखा था पहले ए बी प्लस ए बी डैश. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से c मिसिंग है तो इसको हम c प्लस सी डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ पर भी c मिसिंग है तो इसको भी हमने c प्लस सी डैश से मल्टीप्लाई कर दिया. एंड देन वी विल एक्सपेंड दिस टू गेट दिस रिजल्ट ए बी सी प्लस ए बी सी डैश प्लस ए बी डैश सी प्लस ए बी डैश सी डैश. So this one term
can be written like this. Now in this presentation, in this form, all the literals are present in the min terms. अभी हमारा ये जो था ये min term नहीं था, ठीक है, ये बात, दिस वाज ए सिंपल टर्म, अब इसको हमने min terms में कन्वर्ट कर दिया, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 4 min terms और सबके अंदर सारी वैल्यूज, सारे लिटरल्स आपके होने चाहिए। सिमिलरली बी डैश सी था, तो बी डैश सी में जो मिसिंग लिटरल था वो था ए, तो हमने ए प्लस ए डैश से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन वी गेट ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी डैश सी। अब हम दोनों को कंबाइन कर देंगे टू गेट दिस डिजायर्ड रिजल्ट। तो इसमें हमारी 4 टर्म्स हैं, इसमें हमारी 2 टर्म्स हैं, तो टोटल हमारी 6 टर्म्स हो गई। बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि दोनों में कुछ टर्म्स कॉमन आए, तो उसको हम एक ही बार देखेंगे, ठीक है। जैसे ए बी सी आपका यहाँ पे आ गया, ABC is here, then A B C dash, that's here, A B dash C, A B dash C dash, उसके बाद अगेन यहाँ पे A B dash C है, वो पहले ही आ चुका है। तो by if we go by the logic of x plus x is equal to x itself, ठीक है, and the last term is here, okay, that is also given here। अब हम जो गिवन फंक्शन था f इक्वल टू a प्लस बी डैश सी, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एंड यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज, जो डेजिग्नेशन है उसको भी हम यूज कर सकते हैं, दैट दिस रिप्रेजेंट्स 1। 1 जानने के लिए आप सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो 0 0 1, दैट रिप्रेजेंट्स 1, सो m1 1 0 1, दिस रिप्रेजेंट्स 5 1 0 1। यहाँ पे ये मेरे ख्याल से गलत लिख दिया है इसने, यहाँ पे सी डैश आएगा, हाँ यहाँ पे देखो ना, ए बी सी डैश, ए बी डैश सी कहाँ है, ए बी डैश सी डैश ये रहा, ए बी डैश सी डैश यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये 0 रहेगा, तो दैट विल रिप्रेजेंट 4, एंड दिस वन विल बी 1 1 0 m6 एंड 1 1 1 m7। तो कोई भी फंक्शन है उसमें अगर यहाँ पे हमारे 4 वेरिएबल होते, वो आपको दिया जाता है कि f इज ए फंक्शन ऑफ a b और c, या फिर f इज ए फंक्शन ऑफ a b c d, तो 4 वेरिएबल है, तो हर टर्म के अंदर आपके 4 ही वेरिएबल, चारों लिटरल जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। अगर इसी को हम बोलते कि दिस इज ए फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल्स, तो हम फिर क्या करते, हर एक टर्म को d प्लस डी डैश से मल्टीप्लाई करते, इसको भी एंड सो, ठीक है। तो इफ यू, अगर आपको कंफर्म करना है कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया है, तो जस्ट लुक एट दी आउटपुट जो भी आपने बनाई है, और उसमें हर टर्म में सारे लिटरल्स होने जरूरी है, और कोई भी लिटरल जो है वो, कोई भी टर्म जो है वो 2 बार नहीं होनी चाहिए, 2 बार है तो उसमें से एक को आप हटा दो। ठीक है, जैसे कि ये हमारा फंक्शन है वो दिया हुआ है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, f ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1 4 5 6 7। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो उसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, आपको पता है कि 1 का मतलब क्या होता है, 0 0 1, तो आप x डैश y डैश z लिख सकते हो। अगर उसको प्रॉपरली करना है तो आप क्या कर सकते हो, अच्छा ये तो हाँ लास्ट क्वेश्चन का ही पार्ट था कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सेकंड मेथड क्या है कि हम ट्रुथ टेबल के थ्रू बना सकते हैं। आपको गिवन फंक्शन था a प्लस बी डैश सी, तो आप इसकी पहले ट्रुथ टेबल बना लो, ए बी और सी के तीनों के इनपुट कॉम्बिनेशन बनाए, और हर एक बार उसके चेक करते रहो कि एफ की वैल्यू क्या रहेगी, इसमें वैल्यूज पुट कर करके बार बार। वंस यू हैव गॉट द वैल्यूज, उसके बाद आप जो वंस है उनको निकाल लो और वहां पे उनकी वैल्यूज रख।
So there will be 5 terms here. तो हमारे जो लास्ट एल्जेब्रिकली जब हमने निकाला था तो भी उसमें 5 टर्म्स थी। ठीक है, तो जैसे आपसे पूछा गया है आप उसी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। देन वी हैव प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म भी आपका उसमें भी उतने ही नंबर ऑफ फंक्शंस बनते हैं जितने मीन टर्म्स में बनते हैं। 2 raised to the power 2 raised to the power n, where n is the number of binary variables। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी गिवन फंक्शन है उसको मैक्स टर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो पहले आपको उसे इस तरीके की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। उसके लिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज कर सकते हो। ठीक है, x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। ऐसा आप कितनी भी बार कर सकते हो। अगर आपको गिवन फंक्शन जो है वो है, जैसे हमारे लास्ट में था a प्लस बी डैश सी, इसको आपको पहले चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा इसकी फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी। पहले हम इसको लिखेंगे a प्लस बी डैश और फिर हम लिखेंगे इसको a प्लस सी। ठीक है, अभी भी ये मैक्स टर्म नहीं बनी है अभी, लेकिन ये प्रोडक्ट ऑफ सम हो चुका है। ठीक है, मैक्स टर्म तब बनेगी जब इसके हर एक टर्म के अंदर आपके सारे लिटरल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी मिसिंग है सी और यहाँ पर मिसिंग है बी, तो जब ये दोनों भी फुलफिल हो जाएंगे उसके बाद आप उसको बोल सकते हो कि मैक्स टर्म जो है वो बनेगी। ठीक है, उसका मेथड भी हमारे वैसा ही है जैसे पहले था। एक हम एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे कि हमारा एक बुलियन फंक्शन था एक्स वाई प्लस एक्स डैश जेड, एज ए प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म हमने इसको एक्सप्रेस करना है। पहले हमें और टर्म्स के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई को पहले आप एक टर्म मान लो और इसको मान लो सेकंड टर्म और इसको मान लो थर्ड टर्म। ठीक है, इसको हम ऐसे मान सकते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ए प्लस बी सी को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो दैट स्टेप इज हियर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। अब अगेन इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं और इसको सी मान सकते हैं। तो अगेन ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, so x dash plus x, that is here, and x dash plus y, that is here. Similarly इस केस में z plus x into z plus y, तो हमने वो यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई इन द सेंस जैसे x डॉट x डैश 0 हो जाता है, x प्लस x डैश को आप 1 लिख सकते हो। तो 1 लिख देंगे तो वो टर्म हमारी गायब हो जाएगी यहाँ। ठीक है, तो इसमें अब रिमेनिंग 3 टर्म्स बची हैं। तो अभी हमारा जो काम है ना, अब हम स्टार्ट करेंगे इसको मैक्स टर्म्स में कन्वर्ट करने का। टिल नाउ वी हैव जस्ट एक्सप्रेस्ड द गिवन फंक्शन एज प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स। EOF फॉर्म में हमने उसको बस लिखा है अभी। दिस इज नॉट द कैनोनिकल फॉर्म, दिस इज नॉट द मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन। वो हम अब करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, जिसमें से जो भी चीज मिसिंग है वो और उसके प्रोडक्ट, उसके कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट उसमें ऐड कर देंगे। जैसे x प्लस वाई हमने यहाँ पे लिया, x डैश प्लस वाई सॉरी, तो इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, z इंटू जेड डैश। दिस विल नॉट अफेक्ट द लॉजिक। वाई? बिकॉज z डॉट जेड डैश इज इक्वल टू 0 एंड इन बुलियन x प्लस 0 इज इक्वल टू x। ठीक है, नाउ यू कैन अप्लाई अगेन द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कंसिडरिंग दिस as a, this as b and this as c। ठीक है, तो a प्लस बी एंड a प्लस सी। सो x डैश प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश।
ऐसा हम सब में करते जाएंगे, जिसमें जो मिसिंग है उसमें वो और उसके कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट ऐड करते जाएंगे और फिर सारी टर्म्स को यहाँ लिख लेंगे। अब इन जो भी हमारे यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं टू गेट दिस डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी 1 to 6 टर्म्स बनती हैं, तो जो रिपीट हो रही है उसको हम लीव कर देंगे। जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इनमें से हम एक को ही लेंगे। इसी तरीके से एक और कौन सी है जो सेम है, दिस वन, एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड, एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड। So by taking the logic of x dot x is equal to, अब हम गिवन फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर डेजिग्नेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम जीरो मानेंगे, क्योंकि आपको पता हो, ध्यान हो तो मैक्स टर्म में हम उल्टा करते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको 1 रखते हैं, सॉरी जो जीरो होता है उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, हाँ, और जो 1 होता है उसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका ये 1 1 1 नहीं है, ये बेसिकली 0 0 0 है, तो इसको हमने लिख दिया कैपिटल M0। सिमिलरली दिस विल बी 0 1 और 0, तो इसको हमने लिख दिया M2, 1 0 0 M4, 1 0 1 M5। तो हम उनका प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है, मोर कन्वीनियंट वे क्या है आपका, यूजिंग द प्रोडक्ट सिंबल। दिस मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट। पहले जो हमने यूज किया था उसमें था समेशन, सम ऑफ द टर्म्स इनसाइड। ठीक है, तो 0 2 4 5 इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। Now you guys have any doubt in expressing the function as mean terms, as a sum of mean terms or product of max terms? आप अभी पूछ सकते हो। ठीक है, बेसिकली हमें करना ये होता है कि जो भी मिसिंग लिटरल है वो और उसके कॉम्प्लीमेंट, उसके साथ मिलके हमें चीज करनी होती है। अगर हमारे प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म की बात करते हैं तो हम जो भी चीज मिसिंग है उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ प्रोडक्ट करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, और जो मीन टर्म्स में था उसमें हम क्या करते थे, x प्लस एक्स डैश, अगर ये x, अगर x मिसिंग है तो हम उससे मल्टीप्लाई करते थे और फिर उसको एक्सपेंड कर दो। तो मीन टर्म्स के केस में तो हमें सिर्फ अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करना होता था, और मैक्स टर्म के केस में हमें डिमोर्गन थ्योरम को यूज करना पड़ता है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करना पड़ता है। ठीक है, now let's discuss how to convert from one canonical form to another canonical form। ठीक है, सपोज आपको जो है वो दिया हुआ है मीन टर्म्स के फॉर्म में, आपको मैक्स टर्म के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? जो उसके मेथोडोलॉजी है वो देखिए आप। लेट्स से हमें ये फंक्शन दिया हुआ है f of abc is equal to summation of mean terms 1 4 5 6 and 7। तो इसका मतलब क्या है कि जब जब आपके बाइनरी जो वेरिएबल्स हैं उनके इनपुट कॉम्बिनेशन इस डेसिमल के बराबर आता है, वहां वहां उसके आउटपुट 1 है। इफ योर इनपुट कॉम्बिनेशन इज 0 0 1, तो वहां पे एक आउटपुट 1 है, एक 1 0 0 पे आपके आउटपुट 1 है, एंड सो ऑन। तो अगर इन वैल्यूज पे आपके आउटपुट 1 है, दैट मीन्स रिमेनिंग आउटपुट के ऊपर आपकी रिमेनिंग कॉम्बिनेशन के ऊपर आपके आउटपुट 0 है, तो उसको हमने लिख दिया f डैश इज इक्वल टू समेशन ऑफ 0 2 and 3।
ऐसा कर सकता हूं मैं। ठीक है, ये हमारा सिंपल फंक्शन था, हमने उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, तो जो मिसिंग टर्म्स थी वो हमने लिख दी उसमें और बाकी हटा दी, क्योंकि यहाँ पे आपके आउटपुट 1 है, तो बेसिकली जो रिमेनिंग जो भी चीज है वहां पे आपके आउटपुट 0 है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी वही होता है। ठीक है, अब इसको मैं मिन टर्म्स की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? m0 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, now I will again take complement of this function, but now I will take complement in algebraic form। अभी मैं इसके दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो दोबारा मेरा फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि f डैश का कॉम्प्लीमेंट जो लोगे तो वो अगेन विल गिव यू f, तो वही यहाँ पे आपका हो रहा है। अब मैं कॉम्प्लीमेंट जो है वो मिन टर्म की समेशन और पाई की बजाय एल्जेब्रिकली लूंगा, तो मैंने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को लिखा, डैश लगाया। अब आप उसको बुलियन अलजेब्रा को लेकर सोल्व करो, तो ये आप डैश जो अंदर जाएगा, प्लस को आप डॉट करोगे, तो दिस विल बिकम दिस, m0 प्लस m2 प्लस m3 का डैश दैट विल गिव यू m0 डैश डॉट m2 डैश डॉट m3 डैश। और मीन टर्म का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें मैक्स टर्म मिल जाती है। ठीक है, और एक बार हमें m0 m2 m3 कैपिटल फॉर्म में मिल गए तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते। ठीक है, अगर आपको याद हो 00 की 100 के लिए जो अगर हम मीन टर्म बनाते हैं तो वो हमारी क्या बनती है? x y डैश z डैश। और अगर हम इसी की मैक्स टर्म बनाते हैं तो वो हमारी बनती है x डैश प्लस y प्लस z। ठीक है, एंड दिस इज सिंपली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन। इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें एक्स वाई डैश जेड डैश का, तो वो क्या बनेगा? एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो इस मेथोडोलॉजी को हम यूज करेंगे। तो अगर आपको ये फंक्शन गिवन है, आप डायरेक्टली जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो ले लीजिए और उसको मैक्स टर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। मैक्स 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 टर्म्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये अपने ध्यान रखना। ठीक है, किसी को डाउट इसमें अभी तक? एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है, जैसे हमें ये गिवन फंक्शन है, वी हैव टू एक्सप्रेस दिस एज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। तो आप कैसे करोगे? द वन मेथड टू डू इज, पहले आप इसकी एक ट्रुथ टेबल बना लो। ट्रुथ टेबल बना लिया, आपको पता लग गया 0 कहाँ पे है, 1 कहाँ पे है। जहां जहां पे 0 है उन टर्म्स को आप मैक्स टर्म्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज वन वे टू डू दिस। ठीक है, एल्जेब्रिकली हमने पीछे किया था इसको। एल्जेब्रिकली कैसे किया था? पहले एक्स वाई प्लस एक्स डैश लिखेंगे, फिर एक्स वाई प्लस जेड लिखेंगे। ठीक है, पहले इसको और की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, फिर रिमेनिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अगेन एंड अगेन यूज करते जाएंगे, और फिर हमारी एक एक्सप्रेशन आएगी। वन मेथड इज दैट। ठीक है, अगर इसकी बजाय आपको ये चीज गिवन है, इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में फंक्शन गिवन है, तो आप क्या कर सकते हो? जो रिमेनिंग मिसिंग टर्म्स हैं उनको लिख लीजिए और समेशन की जगह मल्टीप्लायर का साइन आ जाएगा।
प्रोडक्ट का साइन आ जाएगा. That's how we can convert from sum of mean terms to product of max terms. फर्स्ट वाला मेरे को मेथड समझ नहीं आया, मतलब जो आपने कहा था ना f इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड डैश वाला. वो हमारा ये वाला मेथड था. इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अगेन एंड अगेन यूज करते हैं. अभी अगर इसको आप देखोगे तो इसमें जो है वो डायरेक्टली मैक्स टर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रोडक्ट भी है और प्रोडक्ट का सम हुआ पड़ा है. और हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ सम, लेकिन उसमें एक ही टर्म होनी चाहिए. सॉरी, अभी सम ऑफ प्रोडक्ट है हमारे पास, दो प्रोडक्ट है और उनका सम है, और हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ सम. तो पहले हमें इसके ऊपर एक बेसिक कन्वर्जन करना पड़ेगा इसका. तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो फॉर्मूला होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, इन विच ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी. तो इसमें आप अलग अलग बात स्टेप्स के अंदर किसी को भी ए मान सकते हो, किसी को भी बी और सी मान सकते हो. तो इसमें पहले हमने इसको ए मान लिया, कंप्लीट टर्म को, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया. तो एक्स वाई प्लस एक्स डैश इंटू एक्स वाई प्लस जेड, वो हमारा ये आ गया फर्स्ट स्टेप. अब मैं अगेन जो है इसको ए मान लेंगे, इसको बी और सी मान लेंगे. तो एक्स डैश प्लस एक्स इंटू एक्स डैश प्लस वाई. सिमिलरली हियर z प्लस x into z plus y. We will keep on doing this until we get this type of form. ठीक है, अब आ रहा है समझ में? यस सर. ठीक है, अब जो भी मिसिंग टर्म है उसको हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे. जैसे इसमें से z मिसिंग है तो z डैश को ऐड कर दिया, यहाँ से y मिसिंग था तो y डैश को ऐड कर दिया, एंड सिमिलरली x डैश. फिर अगेन यही मेथड फॉर्मूला यूज करेंगे. अब हम इस कंप्लीट को a मान लेंगे और इन दोनों को, इसको b और इसको c. तो एक बार a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, तो वो आपकी ये टर्म. वी विल कीप ऑन डूइंग दिस एंड देन वी विल मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स. जो रिपीट हो रही है उसको हम अवॉइड करेंगे, उसको छोड़ देंगे, एक ही बार रखेंगे. अंडरस्टूड? यस सर. Okay. So this was about the canonical forms as sum of mean terms or product of max terms. उसके अलावा हमारा जो sum of mean terms है उसकी जगह हम लिख सकते हैं sum of product. But that will not be the canonical presentation. उसमें क्या होगा आपका, simply terms होती हैं कुछ, जैसे ये आपका है, इसमें क्या आपको देखने से लग रहा है कि this is a sum of 3 different terms. और जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं उसके अंदर प्रोडक्ट है, इसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट बोल सकते हैं. दिस इज वन टाइप ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म. अनदर टाइप इज प्रोडक्ट ऑफ सम. तो उसमें हमारा आपको देखने से पता लग जाएगा कि जैसे ये वाला फंक्शन है f2, देयर आर 3 टर्म्स एंड देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 टर्म्स, एंड विद इंडिविजुअल आपकी टर्म्स हैं उसके अंदर आपका सम है. So this is product of sum, that is POS form, but that is, and this is SOP. The difference between this and the previous discussion is यहाँ पे जो टर्म्स है वो मीन टर्म्स नहीं है, और यहाँ पे जो टर्म्स है वो मैक्स टर्म्स नहीं है. आपकी जरूरी नहीं है कि सारे वेरिएबल्स हो कि ना हो, सारे लिटरल्स उसमें हो कि ना हो हर एक टर्म के अंदर. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हम मीन टर्म्स के अंदर जाते हैं. अगर इसको आपको कैनोनिकल में एक्सप्रेस करना हो, वो ही हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, या इसको हमने कैनोनिकल मैक्स टर्म की फॉर्म में करना हो, वही हमने लास्ट
डिस्कशन में किया था. We inserted the remaining literals in each of the terms. So this is standard form and that is canonical form. ठीक है, अब इसको देख के आप जो है वो डायरेक्टली अपने दिमाग में एक लॉजिक बना सकते हो कि दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट. आई विल जनरेट 3 टर्म्स यूजिंग द प्रोडक्ट ऑपरेशन. और प्रोडक्ट किसमें होता है? आपका एंड ऑपरेशन के अंदर. 3 गेट एंड गेट लगेंगे स्टार्टिंग में, उनकी आउटपुट एक और गेट में जाके मेरा F1 का डिजिटल सर्किट बन सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है, स्टार्टिंग में एंड गेट्स आएंगे and the output of all the AND gates will be an input to the OR gate. So this is summing all the products. यहाँ पे उनका सम हो रहा है और यहाँ से उनको सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे थे. POS में उल्टा हो जाएगा, यहाँ से उनको प्रोडक्ट मिलेगा और प्रोडक्ट किनका होगा? जो भी सम्स जनरेट होंगे यूजिंग द डिफरेंट OR गेट्स इन द इनिशियल स्टेज. तो आप एक्सप्रेशन को देख के डायरेक्टली इस तरीके से सर्किट बना सकते हो. ठीक है, अब जैसे एक सर्किट हमारे पास ये है, इसको बनाना हो तो इसके लिए पहले आपको ए बी चाहिए, हमने ए बी निकाल लिया. उसके बाद डी प्लस ई का प्रोडक्ट है सी के साथ, पहले डी प्लस ई को जनरेट किया यूजिंग OR गेट, सी के साथ प्रोडक्ट किया, फिर दोनों को दोबारा से OR गेट में इंसर्ट किया. नाउ दिस इज नॉट ए SOP फॉर्म. ये आपकी SOP भी नहीं है और ये POS भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. ये neither SOP nor POS, मिक्स्ड है. आप नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपको SOP और POS होगा तो इस तरीके से सर्किट बनेगा, स्टार्टिंग में एंड गेट लास्ट में OR, या स्टार्टिंग में OR गेट लास्ट में एंड गेट. इस तरीके को प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे कर सकते हो? जो भी ब्रैकेट्स हैं उनको आप ओपन कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए. तो जब आप इसको एक्सपेंड कर देते हो तो हमारा ये बन जाता है AB plus CD plus CE. Now you can have 3 products here and then one sum in the end. अब ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको देखने से ही लग रहा है that this circuit is more symmetrical as compared to this circuit. Later we will during the course we will study that propagation delay is one of the important parameter in digital circuits. ठीक है, तो इस तरीके के सर्किट में जो प्रोपेगेशन डिले होता है सारे सिग्नल्स में वो इक्वल रहता है, तो वो हमारा ज्यादा सही रहता है एज कंपेयर टू दिस. ठीक है, so this is all for today's class. Please go through the sum of product and product of sum again from the book and try to understand the concept of mean terms and max terms. आपको कोई भी डाउट लगता है, कुछ भी लगता है कि कुछ दोबारा करवाना चाहिए, आप प्लीज मुझे बता देना क्लास से पहले.